हाँ Hello. yeah hi Yes, hello. Yes, sir. Hello. Yeah, hello. Yeah, am I audible? Okay. Okay, so can we start? Yes. yes Okay, so first of all, let's have an introduction about each and everyone, so we can able to capture some of the technological or skills that they have referred. Okay, so can we start with Ashwani? Yes. Yeah, Hello, sir. Ashwani. My name is Ashan Kumar Chaurasia, and I have in experience in this IT industry is 2.5 years, and also I'm preparing for my interview schedules. Uh, so it's it's for my side. Thank you. Okay. Okay. Next is who? Divya Prakash Chaturvedi or what? yeah hi Ramesh Yeah. Divya Prakash this and I'm learning right now I'm learning Java core and related frameworks just like Spring Core and Spring Boot. So hopefully I'll get something from you. Okay. Next is who? Prashant. Yeah, my name is Prashant Kumar Bajpayee, and I have 2 years experience in IT industry. And I am learning technologies like Java, Spring Boot, React.js, CSS. Okay. Next is Abhishek. Abhishek, Viswajit, Shivam. Yeah. Yeah, myself Abhishek. I am learning Java Oops currently, and I have completed my BTech in mechanical. So I am currently learning Java again. Okay. Next is who? Hi, this is Rahul. Yeah. Hi, Rahul. So, Dharmesh, my name is Rahul Katheria, and I have 13 plus experience in IT industry, and currently I'm learning React.js. Okay. Great. Hi, Now. hi, Dhanesh. Yeah. Hi. Yeah. This Yeah. is Abhijit. This side Abhijit Dubey. I have 2.5 years of experience in IT industry, and currently I'm working on my Spring and Spring Core concepts, Spring Boot concepts. Okay. Okay. Great. Anyone is pending? They can start their intro. Yeah, hi. Yeah, my name is Shivam Nigam, and I have around 1 year of experience in IT industry. And currently, I'm learning about Spring Boot and Core Java also. Okay. Great. Yeah, hi. My name is Rajnaran Singh, and I have completed Spring MVC and Spring Boot so far, and currently I am looking for a project around 4 years. Okay. Great. Great. Great to hear you guys. Let me give my intro to all of you. So I am Dharmesh Patel. Basically, I am from Gujarat, and I have around 8+ years of experience, and I have been working with Venki, your friend. So Sahil means. So we are
I am with Venki around in 2015 and 16, and we used to enjoy chess game also along with working in IT company. So we both enjoyed our companies. Okay. So let's start then. Okay, all of you guys have said that they all are you working or preparing on Java core or Spring Boot and other core technologies, right? So it is better, and I guess Sahil sir has provided you all the materials, but is it only the required that only with the help of the material we can upskill ourselves? So sometimes while going through the videos we only capture the only theoretical knowledge but not the practical knowledge, that how we actually work or how we actually do the code. In video we can video through also we can type some of the code, but where and exactly how we should write the code we do not come to know. So it comes from the experience only. So many of you who have also started coding, right? So some of you have started coding, and they might have also create the project also. But in project, suppose some sample projects you have created, anyone has created some full page project that might have some app functionality? Anyone has worked on it? Yeah, we have the create a project like customer management, in which we are fetching data from our database through REST APIs, like get, push, post, and update kind of stuff. And we are this kind of, and some validation we have also added in that project. So as of now, I have created this kind of. Okay, so okay, yeah, great. So what management? I missed that. Customer service management, the name of the. Oh, great. Customer service management, yeah. Great. The list of customer is there in database. If you want to get by name or get all those details, and pagination method also is applied over there. And apart from that, we have created the REST API using Spring Boot as well. So JP and Hibernate we have used over there. And we came to know like how to work with repository layer and all. So this is one project provided by Venki sir itself. So we have created that. Okay. So suppose this is the basic functionality that you have created. Like from a REST API, you might have fetched the records, and through the records, we are only going to a database and we are getting those database as a list, right? Correct. Yeah. So sometimes what happens, suppose we also need to make any conditions, so we also have to check some kind of a customer. So your application is a customer service application, suppose, right? So customer is what kind of customer is it? It is a temporary customers, means do it have a 1 month of subscription or a full year subscription? So might be there is a category of a particular customers. So for our particular customers, we also have to make some operations, or we have to record something differently. So in that case, what we have to do, from REST to service management to a database management, inside service management we have to do something, some kind of logic, or we have to code something, right? So how we can think about it, so that we can solve the particular problem in. So suppose many of you are also working in a particular company, and right now you all are maybe in working as a working from home, right? So sometimes what happens that we already have our coding method, that how we should write it code and how, but we actually don't know that how we should successfully end-to-end, so make the end-to-end code. Like suppose we got a particular object of a customer, so how we will
initialize some of the properties on particular condition, how we can efficiently do it, we never know. So all of you have practiced a coding, right? How many of you have didn't started a coding all? Genuinely, please tell me. I'm not saying that you are wrong, but I should know that with who are coding much or who are not coding. I know that Sahil sir also helping you a lot, and they are also You guys providing can you video. you guys can use the gestures as well. Like if the answer is yes, no, you can thumb up or thumb down. So because it's cut short the communication. Yes. Well, Dharmesh here, as on the behalf of the team, I just want to say that we haven't, to be frank and honest, we haven't started coding yet. We have seen the videos, and from there we got the reference and put out all the codes in the Eclipse or any other ID. But frankly speaking, as per on individual basis, without seeing videos, none of person have coded yet. So start from there only, from basics you can say. Okay. So Sahil sir, is it good to start from Spring, or we should start with some Java practice for the coding? What I am planning, like Java section, Dharmesh, I would like to cover. I am planning to cover with the OOPS, and then that portion I would be taking care of. These guys have some basic knowledge, right? They are not like all of them. They might have different experiences, but few like 50% of the guys at least understand what you're saying. Like if you talk about the like IOC, they understand, they already know what is the IOC. They have did a couple of projects. Even might be possible that they have copied from somewhere, but at least they have a fair idea. That's if you going to explain them, hey, this is the list, why this list is being what is the list, just go in that way. For example, if you have started with the list, so in that way you can explain 1 or 2 liner what is the list and what kind of the data is going to hold. We can string or number. In that way we can cover it, but not specifically directly to the Java. That's my recommendation. Okay, not an issue. Yeah, got it, your point. So guys, I got some pretty clear idea. So Sahil sir will cover the Java, so might be they will also provide some practice to all of you, and we can start with a Spring actually. So right now Spring, what is exactly a Spring? You all might know about the Spring or Spring Boot. Spring Boot basically all of you know, because nowadays Spring Boot is very much used, and the reason Spring Boot is kind of a what we can say that suppose you have a bike, right? But right now what we are getting it while we are purchasing it, we only have to fill the petrol and our bike will start. So Spring Boot, what it provides the entire bike, and there are number of components of a Spring framework. Like suppose Spring has bike has a wheels, engine, then key, then seats, then what others we can cover it, other spare part also. So Spring has a number of components like a Spring Core, Spring Framework, Spring Aspect Oriented Programming, Spring Data, then Spring Batch Processing. So there are a number of components, but who integrates all of these components? So here the Spring Boot comes. Okay, so we can consider it a Spring Boot as a key. So whenever we start the bike, and the entire wheels will also start, engine will also start continuously. So concurrently all the components work in parallel, right? So all are you understanding English very well, right? Yes. Okay, great. So do you understand any this simple example of a bike or anything? If you have any of the question, please raise the question so I can able to understand. I can able to clear your doubts. Okay. Yeah. So whenever there is something doubts, like suppose how it is working,
So Yep. you can raise a question. Yeah, Okay. look, guys. To bring up the Dharmesh is the only objective that you can guys clear your doubts wherever you are guys are struggling. So please bring enough questions. No question is the silly questions, I always say. So please bring some questions with the analytical mindset. Why this is happening? What the behind the scenes things are happening? Okay, so that kind of question sets is more important. That things are going to increase your level of understanding. And why the question is more important? Suppose you all have written some simple code like a customer is equal to new customer, right? This simple line you might have written it anywhere because you have started some of the coding and something practices through video you have done. But why new? Why we should not write anything other than new keyword? Okay, so there is something simple rules are there, or there is something logic is there whenever we write a single line or single word inside our coding, because a single statement or a single word had some meaning in a Java or in any language, whether it is React, whether it is JavaScript, or whether it is a SQL, right? So you might have written some SQL queries also, and there are some important. If you have written or misspelled your words, then you might get an error, right? Because so each and every word has some meaning. So if you don't know, just raise a question. And you also have to make your thought process as like a, अरे यार ये कैसे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब बराबर कि मान लो कि ये हमें लिखना पड़ा, तो भाई ये हमें क्यों लिखना पड़ रहा है, हम किसी और तरीके से या कोई शॉर्टकट से हम नहीं लिख सकते? क्योंकि देखिए अभी बड़े बड़े कंपनीज है, मतलब क्या बोलते हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, उसके ऊपर फ्लिपकार्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बराबर। अलग अलग कंपनी के अलग अलग पैकेजेस वगैरह सब कुछ होते हैं उसके हिसाब से। तो वो क्या वो पैकेजेस ज्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि जो बंदा सिलेक्ट होता है उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, कि वो हर एक जब भी वो मतलब लर्न करता है, कुछ सीखता है, बराबर, तो वो उसके थॉट प्रोसेस में कुछ अलग होता है और वो शॉर्टकट ढूंढता है कोडिंग में भी। मान लो कि अभी हम 5 लाइन का कोड लिखते हैं, तो कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है कि 1 लाइन में ही कोड खत्म कर दे, बराबर। तो ऐसे अलग अलग थॉट प्रोसेस से हम शार्प बनते हैं, बराबर। बाकी सब लोग स्प्रिंग ही यूज करते हैं, जावा ही यूज करते हैं। कोई और कुछ ऐसा नहीं है कि जावा से अच्छा रिएक्ट है और रिएक्ट से अच्छा सीक्वल है या कोई भी है, बराबर। सभी लैंग्वेज अच्छी ही है, लेकिन हमारा जो लॉजिक है वो लॉजिक हम कैसे बिल्डअप करते हैं, तो लॉगरिदम से या फिर डेटा स्ट्रक्चर हमें अगर हम थोड़ा ग्रास्प करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो लेट्स कम बैक टू अ स्प्रिंग। ओके, तो स्प्रिंग हमारे पास अभी एक लैंग्वेज है कि जावा है, बराबर। जावा से हम पूरा कोडिंग लिख सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि स्प्रिंग की क्या जरूरत थी कि स्प्रिंग को हमें लाना पड़ा, बराबर। तो ये मैं आपको अभी शुरू से इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपका भी थॉट प्रोसेस थोड़ा बने, बराबर, कि स्प्रिंग जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है तो हम वो कवर अप कर सके। तो ये स्प्रिंग क्यों आया, फिर स्प्रिंग आने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़े 2-3 साल हुए तो उन लोगों ने सोचा कि यार स्प्रिंग बूट लाते हैं। तो स्प्रिंग बूट क्यों लाना पड़ा, बराबर। स्प्रिंग बूट लाए, फिर अलग अलग उन्होंने कंपोनेंट बनाए, जैसे मैंने आपको बनाया कि व्हील, इंजन वगैरह अलग अलग बनाए, बराबर। तो आपको पता होगा कि व्हील बनाने वाली, टायर बनाने वाली कंपनी कोई अलग होगी, इंजन बनाने वाली कंपनी कोई अलग होगी, बराबर है। कोई अलग अलग छोटे छोटे स्पेयर पार्ट या स्क्रू है वो बनाने वाली कंपनी अलग होती, बराबर। तो रियल लाइफ में भी क्या होता है कि कोई भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उनका कोई अलग अलग डिवीजन होता है और उनका कोई शार्प रोल होता है वहां पे। शार्प रोल मतलब कि उनकी स्पेशलिटी होती है उसमें। तो वैसे ही स्प्रिंग में भी अलग अलग उन्होंने कंपोनेंट बनाए कि स्प्रिंग डेटा बनाया। स्प्रिंग डेटा क्यों बनाया कि भाई अगर डेटा के रिलेटेड कुछ भी काम हो, डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस कनेक्ट करना हो तो आप मेरे पास आइए, स्प्रिंग डेटा बोलेगा ये आपको ओरेकल का डेटाबेस या साइबेस का या फिर माई सिक्वल का कोई भी डेटाबेस से आपको क्वेरी करनी है, डेटा लाना है, तो आप मेरा कांटेक्ट कीजिए और हम कर लेंगे। तो स्प्रिंग डेटा के पास ऐसी अलग अलग मेथड्स है। तो
तो हम आपको देखे प्रोजेक्ट आपने जब भी आपने बनाया होगा तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज देखी होगी, बराबर एवरीवन। तो हमें तो ये सारी लाइब्रेरीज करती क्या है, एक 2-2 MB 5-5 MB की वो लाइब्रेरीज होगी, अगर किसी ने साइज देखी होगी बाहर से एक्सप्लोरर से। तो ये सारी 2-2 5-5 MB की लाइब्रेरीज करती क्या है, कोई लॉजिक तो नहीं करती होगी, बराबर, कोई मैजिक। अगर मैजिक है तो फिर कोड नहीं है, क्योंकि कोई भी कोड लिखते हैं और वर रन हो रहा है तो उसके पीछे का बहुत सारा मैकेनिज्म काम कर रहा है जो हम मतलब देखते नहीं है और हम आइसोलेट कर रहे हैं। हेलो हेलो। या प्लीज म्यूट कीजिए। ओके हाँ जस्ट 1 मिनट यार, ये 1 मिनट होल्ड करना है क्योंकि यार लाइट चली गई तो सब लोग अपने अपने मोबाइल से ज्वाइन करते हैं। ओके ओके जस्ट Yeah, yeah. वेट फॉर I'm अनदर 2 online. मिनट्स। yeah, just give me a heads up, then we can start. Hello. Hello. Yes, hello. Yeah, you can continue. everyone is on. Yeah, continue. Yeah. Okay. हाँ, तो हम कहाँ पे थे, वो स्प्रिंग डेटा के लिए, बराबर। कि स्प्रिंग डेटा मतलब क्या मैकेनिज्म करता है, कोई भी कहीं से भी अगर डेटा लाना हो, डेटाबेस से लाना हो, या फिर कोई मतलब डेटाबेस भी अलग अलग होते हैं, AWS का भी होगा, फिर अज्यूर का भी होगा, कोई भी कहीं से भी डेटाबेस लाना होगा तो वो स्प्रिंग डेटा जो कंपोनेंट है वो हम यूज करेंगे, बराबर। बाद में हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग है, बराबर, वो अलग अलग कंपोनेंट तो है लेकिन उसका मेन मैकेनिज्म क्या है, उसका मेन इंजन क्या है। जैसे कि हमारी बाइक है तो उसका मेन इंजन क्या है जहां से हमारा ये स्प्रिंग रन हो रहा है, बराबर। तो आप नोट्स भी थोड़े लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, और साथ साथ में क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बराबर। तो बाद में भी हम कवर अप कर सके, बराबर। छोटा सा कोई भी सिली क्वेश्चन हो तो भी आप लिख सकते हो, फिर हम कवर कर लेंगे। तो उससे क्या है कि एक दूसरे को हमें हेल्प मिलेगी, मतलब सबको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो सब कुछ बनाया, तो लेकिन स्प्रिंग का मेन लॉजिक जो है वो क्या है और वो कहाँ से आता है। तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग कोर करके भी एक लाइब्रेरी होती है, बराबर। तो स्प्रिंग कोर की लाइब्रेरी में मेन लॉजिक होता है स्प्रिंग का। अब आते हैं स्प्रिंग क्यों चाहिए हमें। तो हम सिंपली, मैं अभी चैट में ही लिखता हूँ, ठीक है। अभी कोडिंग तो आज जरूरत नहीं है शायद, बराबर। तो हम सिंपली जब एक कस्टमर का, मान लो कि हमारे पास क्लास है, बराबर। मैं पूरा कोड नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, बराबर। जो भी एक टेम्पलेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, बराबर। कस्टमर होगा और उसके अंदर क्या होगा, नेम। एक मिनट में स्क्रीन ही शेयर कर लेता हूँ, बाकी आपको पता नहीं चलेगा। Okay, just a minute. Okay, everyone able to see my screen? Notepad++? Yes. Yeah. Yes, okay. So suppose we have a class, a particular customer class, right? And we are writing it like a public class customer. Okay, then we might have a private string name, private string city, private string एड्रेस, बराबर।
Okay, so suppose we have a 3 fields. Okay, in these 3 fields we have a address class also. Okay, so suppose in our project we also have defined public class एड्रेस, बराबर, और उसके अंदर भी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी डाली है. मैं सिर्फ ऐसे लिख लेता हूँ कि फ्लैट नंबर, फिर क्या बोलते हैं सोसाइटी नेम, फिर विलेज नेम, then city, then state, and then country. Okay, suppose pin code is also available. Okay, so I have just written in a simple format. So in coding we have to write like a public string flat number, public string society name, public string village name. Okay, so suppose whenever we have to initialize this customer. Okay, so in public static void main, all of you know getters and setters method? Yes. Yes. Okay, great. Public static void main, all of you aware, main string args. Okay, okay, और हमने चलो मान लो कि यहाँ पे कस्टमर C इज इक्वल टू न्यू कस्टमर. ठीक है, यहाँ पे हमने C बनाया, बराबर. हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स मेथड है, वो आप मान लीजिए कि हमारे पास है, बराबर. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नेम सेट करेंगे C.set नेम करके, और कुछ भी नाम हम डाल देंगे, बराबर. यहाँ पे डाल देंगे अश्विन. Anyone has drawn something? Yeah, yes, someone draw something. Okay. Can you remove it? C.set city. Okay. Varanasi. ओके, C.set एड्रेस. अब यहाँ पे हमारे पास एड्रेस करके एक फील्ड है, बराबर. तो ये एड्रेस फिर हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे सेट करने के लिए, और हमें वो पास करना पड़ेगा. एवरीबॉडी गॉट इट, और शुड आई हैव टू राइट कोड? लेट मी एड इट. ओके, एड्रेस इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, बराबर. और हमने मान लो कि हमने ये सारा सब कुछ सेट किया है, जैसे मैंने नीचे सेट किया है कस्टमर का, बराबर. और फिर हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस को हम इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमने कस्टमर बना, एड्रेस कस्टमर बनाने के लिए हमने ये पूरा न्यू से कस्टमर बनाया और फिर एड्रेस बनाया, बराबर. लेकिन ये क्या हुआ, ये टाइट कपलिंग हो गया. मतलब हमने ये कोड लिखा और हमने अगर डेप्लॉय कर दिया, बराबर, तो ये जो जितनी भी लाइन है वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में, बराबर. एवरीवन एग्रीज, और वी कैन चेंज इट आफ्टर डेप्लॉइंग. डेप्लॉइंग मतलब कि हमने कोड बिल्ड कर लिया और हमने पुश कर लिया, तो उसके बाद हम चेंज कर पाएंगे क्या? एनीवन? नहीं कर पाएंगे, बराबर. तो मान लो कि यार एड्रेस तो मैंने एक प्रकार का दिया, लेकिन मुझे दूसरे टाइप का एड्रेस चाहिए था, तो क्या फिर मुझे फिर से वो नया एड्रेस बनाना पड़ेगा, बराबर. और फिर से वो मुझे असाइन करना पड़ेगा, और फिर से मुझे पुश करके डेप्लॉय करना पड़ेगा, बराबर. तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई न्यू कीवर्ड के अलावा मैं नए एड्रेस बना सकूं, और नए एड्रेस बनाने के बाद मैं सिर्फ यहाँ पे सेट कर दूं तो वो चल जाए, बराबर. ऐसा भी हम चाहते होंगे ना कि भाई हमें ऐसा टाइट कपलिंग नहीं चाहिए. हम ऐसा भी चाहते होंगे कि यार बाइक है, बराबर, बाइक में जो व्हील्स है, तो व्हील्स मुझे C8 वाले नहीं चाहिए, मुझे MRF वाले चाहिए. तो क्या हम चेंज करवा सकते हैं? क्या बाइक के केस में हम करवा सकते हैं? एनीवन? यस, करवा सकते हैं, बराबर. लेकिन इंजन करवा सकते हैं क्या?
हाँ इंजन भी नहीं करवा सकते, मतलब इन हार्ड केस में, मतलब किसी को मतलब करना ही है करना है मतलब तो मैकेनिक के पास जाके कुछ भी करवा लेगा, लेकिन इंजन हम नहीं करवा सकेंगे, बराबर। और उसके अंदर जो पिस्टन विस्टन है वो तो हम करवा ही नहीं पाएंगे, बराबर। तो जो जैसे कि व्हील हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, वैसे ही अगर कस्टमर सी है वो वाराणसी में है अभी, बराबर, तो वाराणसी से अगर वो यूपी में शिफ्ट हो गया, बराबर, और हमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ा कोडिंग में कि नहीं अभी उसका एड्रेस चेंज हो गया है, तो हमें उसका दूसरा एड्रेस अटैच करना पड़ेगा। तो फिर से हमें ये पूरा का सारा कोड न्यू कीवर्ड से लिखना पड़ेगा, न्यू एड्रेस बनाना पड़ेगा, बराबर। तो उससे अच्छा स्प्रिंग ने क्या किया, जो हम ये न्यू कीवर्ड से अभी यहाँ पे लिख रहे हैं ना, वो टाइट कपलिंग कर रहे हैं। जो टेक्निकल स्किल, टेक्निकल लैंग्वेज में हम अगर बात करें, तो ये जो न्यू कीवर्ड है, तो जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी ना, ये एप्लीकेशन न्यू कीवर्ड जैसे ही देखेगा वैसे ही ये एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लेगा, एड्रेस टू ऑब्जेक्ट बना लेगा, ये कस्टमर का सी नाम का ऑब्जेक्ट भी बना लेगा। जैसे ही आप बिल्ड करोगे ना, वैसे ही आप जार फाइल देखते होंगे, बराबर, जैसे ही आप बिल्ड करते होंगे। हेलो, जी जी। Yes, yes. हाँ, टारगेट फोल्डर के अंदर अगर किसी को पता नहीं है तो आप एक दूसरे की मदद करके आप थोड़ा समझा देना कि ये टारगेट फोल्डर क्या होता है, और आप अभी से नोट बना लीजिए तो आपका भी वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए किसी के साथ, बराबर, एक दूसरे के साथ हेल्प करके, बराबर। बाकी तो बाकी तो You mean to say source folder? या एक के बाद एक। From target, you mean to say source folder? No, no. सॉरी, टारगेट फोल्डर से आपका मतलब सोर्स फोल्डर से था। sorry, I can't hear you because there is a lot of echo. रास्ता का आप अपना माइक बंद कर दो तो फिर सही है। Hello. Yeah. Please, everyone on the mute, and only one candidate who is speaking only. Please go on mute, everybody, except Dharmesh or who is the speaking. Otherwise, it would be creating a lot of echo because of there are a lot of mics in the same room, right? So I request you that who is speaking, just unmute himself, then only you can talk. You can talk also in Hindi if you are not able to get the point. Okay. So my point is from target folder, you mean to say source folder. Am I right or wrong? Source folder. No, not source folder. Source folder contains of files, okay, so which we are writing, okay, but in a source folder, other than source folder, while we are building, there is a one folder is also creating, like a target folder. Okay, anyone knows target folder? Yeah, I know a little bit about target folder. Like when you set, when we set something dynamically, let's suppose we are uploading a file and we set the path dynamically, right? So that will be happen in target folder, I guess. Okay, so target folder is what actually? Suppose you have written a number of lines of code in number of files, okay, but when the when you do a Maven clean build, maybe all of you are aware about it, Maven clean build, right? So whenever you do a build, so what JVM does, it integrates all the files and binds all the files that, like suppose address.java file will be a separate file, customer.java file will be a separate, but how we can integrate it? So it integrates with this number of new keywords and number of lines, it will scans and it will bind accordingly, right? So what exactly it does, so मतलब कि नंबर ऑफ फाइल्स है हमारे पास, तो उसका एक इंटीग्रेट बना के एक सिंगल फाइल में वो सब कुछ दे देगा, बराबर। और जब भी वो जार फाइल, वो टारगेट फोल्डर में एक जार फाइल बनाई होगी, बराबर, वो जार फाइल जैसे ही आप बनाओगे और जैसे ही वो रन करोगे ना, तब हमारा कोड या एप्लीकेशन रन होगी। मतलब कि अभी आप देख रहे होंगे कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अगर आपने रन की होगी तो आप देखोगे कि स्टार्टेड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इन some of the seconds, right? Might be all of you got some of them, some kind of messages like that, but there are two process
to start this application. One is compile and one is run. Okay, so whenever you compile means build. So there will be a jar created, and after jar has been created, we will run that particular jar file and we can able to get that information. Okay, Spring Boot application started in this seconds. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये न्यू कीवर्ड से वो हम सब कुछ बना रहे हैं और हम टाइट कपलिंग कर रहे हैं बराबर। लेकिन स्प्रिंग क्या करता है कि हमें ये न्यू कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है बराबर। जो हमने ये बाइंडिंग किया ना, वो बाइंडिंग की जरूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। कैसे कि स्प्रिंग के पास नंबर ऑफ एनोटेशंस है बराबर। नंबर ऑफ एनोटेशंस मतलब स्प्रिंग करता क्या है कि इनडायरेक्टली वो सारे के सारे बाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम यहाँ पे जो लाइन नंबर 26 है सी डॉट सेट एड्रेस एड्रेस, तो सी इनडायरेक्टली वो एड्रेस और कस्टमर को बाइंड कर देता है। हमें ये एड्रेस 2 बनाने की जरूरत नहीं है, हम कहीं और से इनिशियलाइज करेंगे बराबर। उसके पार्ट हम आएंगे, लेकिन हम थोड़ा स्प्रिंग का बेसिक देख लेते हैं कि स्प्रिंग कैसे वो काम करता है बराबर। स्प्रिंग कोर अभी हम करते हैं बराबर, स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हम टाइट कपलिंग कर रहे हैं बराबर, तो टाइट कपलिंग से क्या होता है कि अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं बराबर। मान लो कि वो यूज हम करते ही ना हो और ये कोड यहाँ कोई भी एक फाइल में पड़ा हो, तो वो भी इनिशियलाइज हो जाएगा बराबर। तो हमें अगर जो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है और हमें वो बनाने ही नहीं है, तो स्प्रिंग क्या करेगा कि वो बाइंड करेगा ही नहीं स्प्रिंग के एप्लीकेशन में बराबर। जो भी हम ऑटो वायर करेंगे या फिर बाइंड करेंगे, उस वही ऑब्जेक्ट सिर्फ क्रिएट होंगे बराबर। अभी मान लो कि हमारे पास, आपको स्क्रीन दिख रही है या अभी ब्लैंक दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन? ओके ग्रेट। मान लो कि अभी एड्रेस 2 है, एड्रेस और एड्रेस 2 बनाया है बराबर। तो हमें एट अ टाइम में हम बनाते थे मतलब ओके। सो पहले जो हम एप्लीकेशंस बनाते थे, मतलब ये तो बेसिक एप्लीकेशन की बात हुई, लेकिन जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है और बड़ी बड़ी कंपनी में एंटरप्राइज एप्लीकेशन उसको कहा जाता है। एंटरप्राइज यानी कि बड़ा बिजनेस या बड़ी कंपनी बराबर। तो वो एप्लीकेशंस में मतलब कैसे होता कि जैसे आप वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो उसमें कंटेनर की जरूरत होती है, फिर एप्लीकेशन सर्वर की जरूरत होती है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होती है बराबर। तो ये सारे अलग अलग कंपोनेंट वो एप्लीकेशन रन करने के लिए और एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंटिन्यूअस रन हो, उसीलिए जरूरत पड़ती थी। लेकिन स्प्रिंग के केस में क्या होता है कि अगर आप स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको एक डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी स्प्रिंग स्टार्टर वेब करके, पर उसमें सारी की सारी एप्लीकेशन मतलब जो मेन कंपोनेंट्स है जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, मेन कंपोनेंट वेब एप्लीकेशन के लिए क्या होंगे कि एक तो जो स्प्रिंग कोर है बराबर, स्प्रिंग कोर से जैसे हमारी पूरी एप्लीकेशन चलती है स्प्रिंग एप्लीकेशन, उसकी जरूरत पड़ेगी। और क्या जरूरत पड़ेगी? सर्वलेट कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों ऑटोमेटिकली स्प्रिंग की जो डिपेंडेंसी होगी उसमें ही आ जाएगी बराबर। और हमें एप्लीकेशन सर्वर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि स्प्रिंग इटसेल्फ रनिंग आवर एप्लीकेशन। तो जैसे जेबॉस, वेब लॉजिक, ये सब कुछ आपको पता नहीं होगा। तो ये जेबॉस, वेब लॉजिक की हमें पहले 5-7 ईयर पहले जो भी लोग जावा में मतलब काम कर रहे थे, बना रहे थे, तो उनको ये जेबॉस सर्वर, वेब लॉजिक सर्वर, ये अलग अलग सर्वर मैनेज करने पड़ते थे। लेकिन स्प्रिंग के केस में क्या है कि स्प्रिंग के केस में हमें ये मैनेज नहीं करना पड़ता है बराबर। ये तो एक डिफरेंस हो गया, आप लिख सकते हो बराबर है। जावा फुली जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन और स्प्रिंग एप्लीकेशन का
बराबर, कि हमें अलग अलग कंपोनेंट वहां पे बनाने पड़ते थे जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन में, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो एक बात अलग हो गई। अब कोर कंसेप्ट क्या है कि भाई जो स्प्रिंग करता है लेकिन जावा नहीं कर पाता, तो हम यहाँ पे कोड में ही आते हैं। देखो यहाँ पे जो लाइन नंबर 23 में लिखा है कस्टमर सी इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, बराबर, और 26 लाइन पे क्या लिखा है, सी डॉट सेट एड्रेस, बराबर, मतलब कि कस्टमर एड्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर। कस्टमर का एड्रेस ना हो ऐसा हो सकता है क्या, एनीवन? हेलो? नहीं हो सकता। हाँ नहीं, Not मतलब कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ही, मतलब होना ही चाहिए, बराबर। हमारी एप्लीकेशन भी हम जब मतलब जो एप्लीकेशन बनाएंगे, बराबर, तो उसमें ही हम कोई कंपलसरी प्रॉपर्टी रखेंगे कि भाई कस्टमर का एड्रेस होना ही चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड में एड्रेस होना ही चाहिए, बराबर। बिना आधार कार्ड में एड्रेस के बिना कोई आधार कार्ड नहीं बनाएगा, आपको प्रूफ भी चाहिए उसके, बराबर। वैसे यहाँ पे कस्टमर एड्रेस के बिना नहीं हो सकता। तो हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि ये जो एड्रेस है, मतलब कस्टमर है, उसका एड्रेस होना ही चाहिए, बराबर। तो कस्टमर इज डिपेंडेंट ऑन एड्रेस, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? कस्टमर इज डिपेंडेंट ऑन एड्रेस और एड्रेस इज डिपेंडेंट ऑन कस्टमर। कस्टमर इज डिपेंडेंट ऑन एड्रेस, ओके, करेक्ट, बराबर। तो ये क्या हुआ, कस्टमर इज डिपेंडेंट ऑन एड्रेस। तो हम जो ये लाइन नंबर 28 पे कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि एड्रेस होना ही चाहिए कस्टमर के पास, बराबर। तो हम एड्रेस यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, बराबर। और मान लो कि हम नॉट नल, बराबर, ऐसा एनोटेशन भी आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, बराबर। ऐसा अगर हम वैलिडेशन हम अगर लगा लेंगे तो ये कस्टमर बनेगा ही नहीं, बराबर, ये एड्रेस के बिना, बराबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कस्टमर इज डिपेंडेंट ऑन एड्रेस, और ऑन लाइन नंबर 30 वी आर इंजेक्टिंग अ डिपेंडेंसी ऑफ एड्रेस टू कस्टमर, बराबर, ऐसा हम बोल सकते हैं। हेलो? यस सर। सबको पता चल रहा है? थोड़ा बहुत मुझे, मैं श्योर हूँ सबको पूरा का पूरा पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जैसे धीरे धीरे कोड करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा, क्योंकि कोडिंग से ही हम ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ही करेंगे। और सब लोगों के पास इक्लिप्स का इंटेलिजेंट आइडिया है क्या? यस। हाँ सब तो, क्योंकि हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो सेशन होगा उसमें स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे, कोई किसी के एक डैशबोर्ड पे या किसी के एक इंटेलिजेंट पे हम काम करेंगे, और बाकी सब फिर हम बाद में मतलब कोडिंग लिखेंगे, बराबर। अभी आज के लिए तो बेसिक हम शुरू करेंगे क्योंकि सबको थोड़ा आइडिया नहीं होगा। तो 30 नंबर की लाइन पे हमने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया, बराबर, किसका, एड्रेस का, कस्टमर में किया, बराबर। तो ये हमने न्यू कीवर्ड से किया, जो कि एक टाइट कपलिंग है। तो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग ऑटो वाइंग करता है, मतलब हमें ऐसा लिखना ही ना पड़े, 24 और 25 लाइन पे जो लिखा है लिखना ना पड़े, और डायरेक्टली हमें एड्रेस का ऑब्जेक्ट मिल जाए और फिर हम वो सेट कर सके, बराबर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम कस्टमर में इंजेक्ट भी कर लेंगे, वो हम कोडिंग में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करता है जो स्प्रिंग होता है, एक मिनट, दूसरा वो होता है कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, बराबर। जैसे स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, जो हमने, ये भी थोड़ा ऊपर से ही जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे जब भी हम कोड करेंगे तब थोड़ा समझेंगे। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मतलब कि यहाँ कोड के पास क्या है, कंट्रोल है, सेट करना या नहीं करना। लेकिन जैसे ही हम स्प्रिंग यूज करेंगे तो हमारे पास मतलब वो कंट्रोल आ जाएगा कि हमें कौन सा एड्रेस अटैच करना है, बराबर। तो ये क्या हुआ कि पहले हम यहाँ से मतलब डिपेंडेंसी डाल रहे थे और यहाँ पे ही कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब उल्टा होगा। तो इसीलिए स्प्रिंग के अंदर एक कंसेप्ट ना, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल,
बराबर। और ये जो दोनों ही कंसेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, तो वो स्प्रिंग कोर करता है, लेकिन किसके थ्रू? कोई तो होना चाहिए अंदर, एक कंपोनेंट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आईओसी कंटेनर, बराबर। सिंपल भाषा में स्प्रिंग कंटेनर कंटेनर भी उसको बोलते हैं, कि कैसे हम कैसे ये स्प्रिंग पूरा मतलब एक साथ चलता है। अब ये जो स्प्रिंग कंटेनर होता है, बराबर, कोई लिख रहा है क्या अभी ये सब कुछ? नहीं, एनीवन इज राइटिंग? नो नो नो, थोड़ा बहुत I'm writing, sir. लिखो। थोड़ा बहुत। Yeah, I am writing, sir. Okay. बुलेट पॉइंट्स लिख। ग्रेट। नहीं, मैं इसीलिए आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस करने की बोल रहा हूँ, क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 साल के लोग भी अपनी नोट्स बनाते रहते हैं, बराबर। और हर एक की नोट्स अलग होती है, लेकिन समझने में बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि जो भी कुछ लिखा होगा वो थोड़ा सोच समझ के लिखा होगा, बराबर। और जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ ये फुल इंफॉर्मेशन है जो भी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे ये, मतलब जो भी मैंने बोला, स्प्रिंग कंटेनर क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, बराबर, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिखोगे, तो आप भी थोड़ा गूगल पे सर्च करके अपने आप भी प्रैक्टिस थोड़ा कर सकोगे, बराबर। क्योंकि जितना हम सेशन में कवर अप करेंगे, माइट बी इट कैन नॉट बी हेल्पफुल टू यू, बराबर। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब क्या होता है, कुछ यूट्यूब का वीडियो देख लिया डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, तो आपको पूरा पता चल जाएगा, बराबर। तो ऐसी नोट्स बनाने की एक प्रैक्टिस रखिए तो अच्छा रहेगा, वरना क्या है कि अभी मैं समझाऊंगा और 2-3 मतलब 1-1.5 घंटा हम सेशन करेंगे, उसके बाद फिर 1-2 घंटा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन से कंसेप्ट हमने चलाए और कैसे वो करने हैं। अभी स्प्रिंग कंटेनर आ गया, तो स्प्रिंग कंटेनर की हम बात कर रहे थे, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करता है, बराबर। अब ये स्प्रिंग कंटेनर हमारे कोड में आता कैसे है, बराबर, कि स्प्रिंग कंटेनर कैसे हमारा वो मतलब पूरा मतलब कोड चलाता है। तो आपने कहीं कहीं पे देखा होगा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। एनीवन, किसी ने सुना है क्या एप्लीकेशन class path XML application context implement कर। यस, ग्रेट ग्रेट। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट बराबर इज इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, बराबर। ऐसा कुछ लिखते हो और उसके बाद पाथ देते हो .xml का, बराबर, स्लैश सम बीन्स .xml। ये सब कुछ में प्रॉपरली कोड करेंगे हम 1-2 सेशन के बाद। उसके बाद हम पूरा एक साथ कोड ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा समझाता हूँ। तो जी ये स्प्रिंग कंटेनर है ना, वो कैसे काम करता है, ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से काम करता है ये। और ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट करता क्या है, तो जो भी हमारे नए नए ऑब्जेक्ट बने होते हैं, बराबर, जैसे कि हमने एड्रेस बनाया, कस्टमर बनाया और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट या इंटरफेस बनाए, बराबर, उसको कंबाइन करता है किसके साथ, जो भी हमने प्रॉपर्टीज और या कॉन्फ़िगरेशन किया है, बराबर। सब लोगों ने एप्लीकेशन डॉट यामल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज भी देखा होगा कोई कोई प्रोजेक्ट में, बराबर। यस। तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेट हुई होती है और उसकी भी वैल्यू होती है हमारे प्रोजेक्ट में। तो वो सबको क्या करता है, ये मिक्सिंग करता है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, बराबर। प्रोवाइडेड मतलब कि हमने अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया हो तो, बराबर। तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ये करता क्या है कि ये पूरी जो XML.xml फाइल होती है ना, उसमें उसको स्कैन करता है और उसको स्कैन करके क्या करता है कि वहां पे कौन कौन से क्लास के लिए क्या क्या डिफाइन किया है, कौन सी वैल्यू डिफाइन की है, सब कुछ, बराबर। तो .xml फाइल से भी ये सब कुछ मतलब वो स्कैन करता है और वो पूरे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लो कि अगर .xml में ही हमने एड्रेस बना लिया, बराबर, एड्रेस ऑब्जेक्ट, और फिर हमने यहाँ से एड्रेस डॉट क्या बोलते हैं उसको, जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है वहां वहीं पे XML का बना लिया, जो मतलब कि फ्लैट नंबर, सोसाइटी नेम, विलेज नेम, सिटी नेम .xml में ही हमने इनिशियलाइज कर दी, तो फिर हमें क्या वो डायरेक्ट एड्रेस मिल जाएगा। अब किसी ने एड्रेस चेंज किया हो, बराबर, तो भी हम वहां पे चेंज करके हम पूरा एप्लीकेशन को रिलोड कर देंगे,
तो ऑटोमेटिकली हमारी जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है वो नए एड्रेस के साथ रीलोड हो जाएगी। एवरीवन अग्री? Yes. बराबर। तो ये जो है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट वो पूरा मतलब स्प्रिंग कंटेनर मतलब पूरा का पूरा इसके पास कंट्रोल होता है, बराबर। और ये कभी कभी इंटरनली काम करता है। अब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के पहले भी एक था, वो क्या था? बीन फैक्ट्री। किसी ने नाम सुना हो शायद, बराबर। Yes, नाम सुना। हाँ, बीन फैक्ट्री, बराबर। तो ये बीन फैक्ट्री करता क्या है, बराबर? बीन फैक्ट्री कुछ भी नहीं है लेकिन एक बेसिक जो मटेरियल होता है, बराबर, अलग अलग मेथड्स होती है जो हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, बराबर। ऑब्जेक्ट और बीन सेम ही है, बराबर। आपको एक कंसेप्ट बता दूं, कभी कभी मैं बीन बोलूंगा, कभी कभी मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा, बराबर। तो ऑब्जेक्ट और बीन के डिफरेंस में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस में बता देता हूं कि जो ये हम बना रहे हैं ना यहाँ पे 26 लाइन नंबर पे, बराबर, वो ऑब्जेक्ट है एड्रेस का, बराबर। एवरीवन अग्री? Yes. ये 26 लाइन नंबर पे हम एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन अगर ये एड्रेस की जो भी डेफिनेशन है, जो फ्लैट नंबर, सोसाइटी नेम, विलेज नेम, अगर हमने एक्सएमएल के अंदर वो सब कुछ डाला हुआ है, बराबर, और एक्सएमएल के अंदर डालने के बाद अगर ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से हमने ये वो ऑब्जेक्ट उठाया, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा बीन, बराबर। पता चला सबको? इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, बराबर। अगर एड्रेस का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो एड्रेस इज इक्वल टू एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन, फिर हमने कुछ लिखा होगा वहां पे, कौन सा बीन का नाम, कि एड्रेस लिखा होगा, बराबर, नॉट विजिबल, बराबर। तो ये क्या हुआ, हमने ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया ये एड्रेस नाम के बीन से। एवरीवन अग्री? पता चल गया बीन और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हम लोड कर रहे हैं स्प्रिंग के थ्रू वो बीन होता है, और हम जहां पे ये कोड में हम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बराबर। समझ गए? ठीक है। तो ये बीन फैक्ट, ये आखिरी लाइन है, फिर से रिपीट करिए। ओके ग्रेट, चलो सही है, आप ऐसा बोलते रहिए जो भी किसी को समझ में ना आए। जो हम एप्लीकेशन में ये सब कुछ बनाते हैं, एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस, कस्टमर सी इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि मैंने एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया, बराबर। फिर 29 नंबर पे अगर ये लिखेंगे और किसी को आप समझाओगे कि भाई मैंने ये लाइन लिखी, लाइन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे मैंने कस्टमर ऑब्जेक्ट बनाया है, बराबर, ऐसा बोलोगे ना आप? यस सर, बराबर, सही। अब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में हम आते हैं और एक्सएमएल फाइल में हम सारे के सारे मतलब कोई क्लास लोड करते हैं। एक मिनट में एग्जांपल ले ही लेता हूं, एक मिनट दीजिए। तो सबको अभी समझ में ही आ जाएगा कहाँ पे होगा। देखो ये बीन फाइल कैसी होगी मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्सएमएल फाइल की हम बात कर रहे थे ना, वो एक्सएमएल फाइल ऐसी दिखेगी आपको, बराबर। किसी ने देखी है क्या फाइल ऐसी? सर कॉपी की बराबर, नहीं कॉपी की है, कोई बात नहीं, कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, कॉपी ही करनी होती है, ये सब कुछ इतना कुछ है नहीं, क्योंकि ये हम यूज नहीं करने वाले, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे हम ऑब्जेक्ट और बीन बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इटसेल्फ लिखा है बीन्स, बराबर, मतलब हम नंबर ऑफ बीन बना रहे हैं, बराबर। बीन और ऑब्जेक्ट सेम ही है, लेकिन एक्सएमएल में हम उसको क्या कहते हैं, बीन कहते हैं, बराबर। और तो ये बीन्स है और इसमें भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि उसकी एक्सएमएल स्कीमा और उसके रिलेटेड ये जो स्कीमा है होती है ना, उसका यहाँ पे वो सब कुछ बनाया है उन्होंने, और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो उसमें हमें पढ़ना नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे एक फुटर नाम का एक बीन बना है, बराबर, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीन बनाएंगे id इज इक्वल टू
एड्रेस मतलब हम जो भी एड्रेस आईडी से बनाने वाले हैं ना ऑब्जेक्ट, मतलब कैप्चर करने वाले, वो एड्रेस चाहिए। ये एड्रेस है, तो मैंने यहाँ गेट बिन करके एड्रेस लिखा है, बराबर। ये तो यही नाम यहाँ पे आईडी में होना चाहिए, बराबर। फिर क्लास इज इक्वल टू कॉम डॉट प्रैक्टिस, ऐसा पैकेज का नाम होता है, बराबर। और उसके अंदर एड्रेस का एक क्लास होता है, बराबर। तो हमें ये लोकेशन देना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर कौन से पैकेज में ये एड्रेस क्लास है और कौन सी बीन हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, बराबर। अगर यहाँ पे हमने ये बीन बना लिया, बराबर, लेकिन आप बोलोगे कि यार हमने यहाँ पे वो क्या बोलते हैं फ्लैट नंबर, सोसाइटी नेम, विलेज नेम, वो सब कुछ तो लिखा नहीं। ये हमने, तो इसका आंसर है कि ये हमने क्या बोलते हैं उसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है, बराबर। लेकिन उसको इनिशियलाइज करना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बराबर। स्लैश क्या किधर गया, बीन, ओके ऐसा कुछ होता है, बराबर। स्लैश बीन, इसके ये बीन के अंदर मतलब हम आ गए, बराबर। ये बीन और स्लैश बीन है, बराबर। और ये अगर हम स्लैश एक ही ये कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं ना, तो उसमें स्लैश बीन लिखने की जरूरत नहीं होती, बराबर। एट्रीब्यूट, हाँ एट्रीब्यूट का। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी ऐसा कुछ होता है, बराबर। और वैल्यू नेम आईडी इज इक्वल टू फ्लैट नंबर, ऐसा कुछ लिखते हैं क्या? यस। नेम इक्वल टू आईडी, वैल्यू इक्वल टू 506। हाँ आईडी इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं ना। हाँ फ्लैट नंबर, बराबर, और वैल्यू इज इक्वल टू B14, बराबर, ऐसा लिखते हैं, बराबर। और यहाँ पे स्लैश लिखना होता है, बराबर। ऐसे ही सारी के सारी मतलब वो प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं और बीन बना सकते हैं। तो ये बीन XML के अंदर आता है, बराबर। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से हम वो XML लेते हैं, बराबर। और उसके बाद ये एप्लीकेशन डॉट गेट बीन एड्रेस करते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये जो एड्रेस का हमने जो बीन बनाया है, बराबर, उसको यहाँ पे हम एड्रेस ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, बराबर। ओके, समझ में आ गई बात, एड्रेस और सॉरी ऑब्जेक्ट और बीन के डिफरेंस के बाद, बराबर। तो ये एक था ऑब्जेक्ट और बीन के अंदर डिफरेंस, बराबर। ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकली देखोगे और ये भी थोड़ा आप लिख लेना, बराबर। लिख लेना मतलब प्रैक्टिस कर लेना, बराबर। दो हम कवर तो करने ही वाले हैं, लेकिन अपने आप से जितना भी आप क्या बोलते हैं कंज्यूम कर पाए उसका, नहीं कंज्यूम तो बराबर है, लेकिन जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना, और मान के चलो कि आपको एक छोटी सी लाइन की एरर के लिए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी ऐसे होंगे कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, और कोई मतलब साहिल सर या कोई बताएंगे ना कि नहीं यार ये ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि यार ये छोटी मिस्टेक और इस मिस्टेक से 2-3 दिन मतलब मेरे बिगड़ गए। लेकिन ऐसे ऐसे ही हमारा मतलब माइंड थोड़ा शार्प होगा और हम एरर सॉल्व कर पाएंगे, बराबर। तो कोडिंग करना पहले से ही शुरू करो। साहिल सर भी जावा कोड कवर करने वाले हैं, लेकिन साहिल सर अगर एक दो प्रैक्टिस दे तो उससे ज्यादा गूगल पे सर्च करो कि कोई जावा की प्रैक्टिस या कोई क्या बोलते हैं उसको पजल्स है, या उसको सॉल्व करना सीखो अपने तरीके से। तो क्या है कि आपके लिए ही है, मतलब कोई किसी को यहाँ पे कोडिंग में हमेशा सिखाता नहीं है, बराबर। लॉजिक तो अपने आप ही बिल्ड करना पड़ता है, बराबर। चलो बैक टू अवर प्रैक्टिस। तो ये जो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन है, बराबर, तो उससे हम पूरा बीन को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, बराबर। लेकिन ये गेट बीन है और बहुत सारी ऐसी मेथड्स है ना, वो बीन फैक्ट्री में है। तो ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट करता क्या है, तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट भी एक एडवांस वर्जन ही है बीन फैक्ट्री का। ऐसा समझो कि एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से क्या बोलते हैं उसको, कि सारे के सारे जो बीन्स होते हैं मतलब वो इनिशियलाइज हो जाते हैं, बीन बन जाते हैं एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से। लेकिन अगर हमने बीन फैक्ट्री से ये अगर किया होता, बराबर, तो मान लो कि ये सारे के सारे क्या बोलते हैं उसको बीन्स नहीं बने होते, बराबर। जब भी हम गेट बीन करेंगे ना बीन फैक्ट्री के केस में, तब वो पर्टिकुलर बीन बनाएगा और वो हमें कैप्चर करके देगा, बराबर।
तो बीन फैक्ट्री एक तरफ से अच्छा ही है कि बीन फैक्ट्री जितने जरूरी है उतने ही बीन बनाए गए, जैसे जैसे हमारा कोड कॉल करेंगे और कैसे जैसे जैसे हम जिस उसका यूज करेंगे। तो ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पे फूटर नाम का बीन और एड्रेस नाम का बीन दोनों का बीन बन जाएगा बराबर। लेकिन हमें जरूरत तो एड्रेस की ही है, तो ये फालतू का फूटर का बीन बन गया बराबर। लेकिन बीन फैक्ट्री क्या करेगा, बीन फैक्ट्री सिर्फ एड्रेस का ही बीन बनाएगा क्योंकि हमने ये कोड में लिखा है बराबर, गेट बीन बराबर। तो बीन फैक्ट्री को क्या बोलते हैं, उसको लेजी लोडिंग बोलते हैं। एक टेक्निकल वर्ड है, किसी को लिखना है तो लिख लो कि व्हाट इज लेजी लोडिंग इन जावा। ऐसा लिखोगे थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जानने को मिलेगा बराबर। तो लेजी लोडिंग मतलब जब भी जरूरत हो तब भी हम बनाएंगे, बाकी हम लेजी का मतलब वही है बराबर। और अर्ली लोडिंग भी एक कंसेप्ट है। तो अर्ली लोडिंग से एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है। तो अर्ली लोडिंग मतलब क्या है कि एप्लीकेशन को जरूरत हो या ना हो, जो जितने भी बीन्स एक्सएमएल में होंगे वो हम बनाते जाएंगे। ठीक है, समझ गए सब? जी बराबर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं। ओके, एक अलग कंसेप्ट जो स्प्रिंग मतलब कि किसी ने लाया है कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बराबर। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि क्या, कि जब भी हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं बराबर, तो हमको शायद पता होगा सबको, लॉग्स पता है क्या? नहीं नो सर। नहीं सर, नो। लॉग्स मतलब लॉगर हम यूज करते हैं। ओके कोई बात नहीं। लॉग्स क्या होता है कि जैसे कि हमने कोड लिखा बराबर, और जब भी कोई एप्लीकेशन में मतलब किसी को बैक ट्रैक करना है और किसी को चेक करना है कि भाई कहाँ तक हमारा एप्लीकेशन मतलब अच्छी तरह से चला और कहाँ पे फटा। तो होता क्या है कि जब भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में जो भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं बराबर, जैसे साहिल सर मैं सब कुछ करते हैं बराबर, तो कभी बार क्या होता है कि कोड फटता है। कोड फटता है मतलब एरर आती है बराबर। तो एरर आती है तो हम एरर चेक करेंगे कि कौन सी लाइन पे वो एरर आई बराबर। तो वो कौन सी लाइन पे एरर आई वो चेक करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स में मतलब यहाँ पे लिखते हैं बराबर। जो एड्रेस 1 है बराबर, तो log डॉट इन्फो एड्रेस एंड एड्रेस 2 इज क्रिएटेड बराबर, ऐसा लिखते हैं बराबर। तो ये क्या करता है कि एक लॉग मैनेजमेंट एक अलग फाइल्स में ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है बराबर, log डॉट इन्फो वाली इंफॉर्मेशन वो एक बार स्टोर करता है। तो वो जब हम चेक करते हैं ना कि जब एरर आती है तो हम सोचते हैं कि हाँ लाइन नंबर 42 का जो मैसेज है वो तो आ गया है, एड्रेस एंड एड्रेस 2 इज क्रिएटेड। तो हमें पता क्या चलता है कि भाई 39 और 49 नंबर पे जो भी कोड है उस पे कोई एरर नहीं आई बराबर। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं log डॉट इन्फो कस्टमर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बराबर। तो ये भी लाइन वहां पे स्टोर हो जाती है। लेकिन मान लो कि वो लाइन वहां पे लिखी नहीं है और इन बिटवीन कुछ हमें मैसेज मिलता है, तो हमें क्या पता चलेगा कि हाँ भाई लाइन नंबर 43 से लेके लाइन नंबर 46 में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि हमें ये जो इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर फाइल में मिली नहीं है बराबर। थोड़ा थोड़ा बहुत समझ रहे हो क्या? यस सर, यस सर। ओके, तो ये तो जो ये लॉग स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये चला कि नहीं कोड इतना। यस ये यस अगर वो चलेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर ये लाइन हमें वहां पे नहीं मिली तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो उसके ऊपर वाला मैसेज है उसके नीचे से लेके यहाँ तक कहीं ना कहीं किसी में गड़बड़ी है, और फिर हम वो डिबग करके वो हमें चेक करते हैं बराबर। डिबग किया है किसी ने? एक वीडियो देखा था, पूरा किया नहीं है। कोई बात नहीं, वीडियो तो पूरा करना ही है लेकिन डिबग भी करना है हाँ। बराबर। अभी तो कोडिंग लिखना है, कोडिंग के बाद अभी आप लॉजिक लिखोगे ना, लॉजिक के बाद आपको बहुत सारे एरर आएगी और एरर आने के बाद वो डिबग करना पड़ेगा। वो तो साहिल से कवर अप कर लेंगे बराबर। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये लॉग क्या होता है। तो
अलग अलग जो पूरी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, बराबर, बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनती है, तो उसमें क्या होता है कि ये ऐसे लॉग जो मैंने बताया उसका लॉग्स का मैनेजमेंट होता है, बराबर। लॉग्स का मैनेजमेंट होता है, उसके साथ साथ डेटाबेस का भी मैनेजमेंट होता है। डेटाबेस का मैनेजमेंट बोलते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, बराबर। डेटाबेस के साथ जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। दूसरा कुछ ऐसा भी होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, बराबर। एक्सेप्ट, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एक एप्लीकेशन में भी, बराबर। जैसे कि ये मैंने बता दिया, लॉग्स मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, एक्सेप्शन मैनेजमेंट। लेकिन मान लो कि यार लॉग्स मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे मतलब हमारे पास टूल्स है, जैसे कि लॉग 4j है, फिर SLF4j है। चल रहा है, भूख कभी चल रहा है, बनाना भी है मुझे। हेलो, 1-1.5 घंटे तो बनाने में लगेगा। प्लीज म्यूट कर रखिए और थोड़ा यस, प्लीज म्यूट कीजिए और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वरना साहिल सर की मेहनत थोड़ी पानी में फिर जाएगी, फिर से आपको वीडियो ही देखने पड़ेंगे, बराबर। और अच्छा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ तो मुझे भी बताइए ऑनेस्टली, बराबर। मैं भी साहिल सर जैसा हूँ, फ्रेंडली हूँ, बराबर, कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा मतलब लंबा जा रहा है, बराबर। तो ये लॉग्स मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया आपको SLF4j है, फिर क्या बोलते हैं उसको, SLF4j, और एक दूसरा भी है log4j करके, बराबर, लॉग मैनेजमेंट के लिए। तो मान लो कि हमने स्टार्ट किया log4j से कि भाई हम log4j से हम लॉग मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट आई, एप्लीकेशन अच्छी खासी बन गई है और चल गई है, और उसके बाद हम सोचेंगे भाई नहीं, अभी तो रिक्वायरमेंट ऐसी आई, SLF4 यूज करना है। तो ये log.info तो मैंने यहाँ पे 2 बार ही लिखे हैं, लेकिन एक फाइल में हम 4-5 बार लिखते हैं, और उसके बाद हमारे पास 100 से 200 से हजारों फाइल होती है, और उसमें सारे में ये लॉग लॉग लिखा होता है। तो अगर हमने वो चेंज किया तो हम क्या हजारों फाइल में चेंज करने बैठेंगे क्या? समझ में आ रहा है कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूँ? यस सर, बराबर। तो मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप एक रूम में सब लोग बैठे हो, बराबर, और सबका जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आती होगी वो बाहर एक मीटर बोर्ड बना होगा, और वहां से एक वायर जाता होगा, बराबर, और वहां से सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, बराबर। अभी ऐसी रिक्वायरमेंट, अभी मान लो, थोड़ा एक ऐसा एग्जांपल में मतलब ऐसी कंडीशन देता हूं आपको, मान लो कि ऐसा मीटर बोर्ड एक नहीं है, लेकिन 10 मीटर बोर्ड के लिए आप सभी के लिए अलग अलग वायरिंग आ रही है बाहर से। यस, थोड़ा समझ रहे हो आप? अलग अलग वायरिंग आती है अभी, मान लो, और अलग अलग से वायरिंग आ रही है सबके लिए, और 10 मीटर बोर्ड अलग अलग है, बराबर। और सोच लो कि अभी लाइट गई और आपको जनरेटर की जरूरत पड़ी, बराबर। तो जनरेटर आपको अटैच करने के लिए कितने कितने में जरूरत पड़ेगी? 10 से 10 में, मतलब अलग अलग जनरेटर लगाने पड़ेंगे। समझे थोड़ा कंसेप्ट मेरा? क्योंकि सबकी लाइट गई है और सबको अभी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बराबर। तो सब लोग क्या करेंगे कि जनरेटर लगाएंगे, सबके अपने अपने इंडिविजुअल, और कितनी मेहनत जाएंगी 10 जनरेटर लगाने में। उससे अच्छा है कि अगर यहाँ पे बाहर एक ही मीटर बोर्ड है और सभी जगह पे ये बिजली पहुंच रही है, तो वहां पे एक ही जगह पे अगर जनरेटर लग गया तो सभी के पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि ये log.info करते हैं, लेकिन ये लॉग का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वो हम एक जगह पे ही रखेंगे, बराबर। कोई पर्टिकुलर क्लास में रखेंगे, पब्लिक क्लास कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। और हमने शायद मान लो कि @configuration रखा है, बराबर। ऐसा किसी ने देखा है एनोटेशन? यस सर। @configuration देखा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लॉग का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बराबर। और ये पूरा का जो कॉन्फ़िगरेशन वाला क्लास है ना, वो सबको बांट देंगे कि भाई यही यूज करो। तो इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे ही log4j का यूज करने का मैंने सोचा होगा पहले स्टार्टिंग में, बराबर। और अब मुझे SLF4j की जरूरत है, तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, SLF4j, तो सभी जगह पे वो चेंज हो जाएगा।
कंसेप्ट समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस हाँ, नहीं ऐसे यस यस मत बोलना, लेकिन जो अगर समझ में ना आए तो यूट्यूब का वीडियो या जो भी देखना है वो देख लेना, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। लेकिन ये ऐसे सिंपल तरीके से वहां पे नहीं समझाएगा, वो बात अलग है, ठीक है। तो एक जगह पे चेंज करने से अगर सभी जगह पे चेंज हो जाता है तो ये अच्छा है, या सभी जगह पे बार बार चेंज करो? नहीं, एक जगह वाला एक जगह पे चेंज होगा। एक जगह। तो ये एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है स्प्रिंग का, ये इस कंसेप्ट पे काम करता है। समझ गई आप? ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि हमारे पास हजारों डेटाबेस है, बराबर। माई सिक्वल है, ओरेकल है, साइबेस है, एडब्ल्यूएस का अलग डेटाबेस है, फिर क्या बोलते हैं अज्यूर का अलग अलग डेटाबेस है। एप्लीकेशन में तो कभी भी कोई भी मतलब बोल सकता है कि मान लो कि ओरेकल, रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि क्रेडिट सूज है, फिर गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। वो कंपनी में क्या होगा कि एक साल के लिए कोई डेटाबेस का उन्होंने लाइसेंस लिया, मान लो कि $500 में वो लाइसेंस है, बराबर। और वो $500 में लाइसेंस डेटाबेस का दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि $200 में ही एक नई डेटाबेस का लाइसेंस मिलता है, बराबर, माइक्रोसॉफ्ट को। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगी कि $300 का फायदा सोचेगी कि भाई मुझे $200 में डेटाबेस दूसरा मिल रहा है, बराबर, तो मैं ये ना लूं, मैं ये एक्सपायर कर देता हूं, मैं उसका नहीं लेता हूं। तो उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट ने तो डिसाइड कर लिया कि डेटाबेस हमें अभी दूसरा चेंज करना है, तो सबको बताना पड़ेगा कि भाई एप्लीकेशन में चेंज करो, दूसरा डेटाबेस करना है। तो हम डेटाबेस में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि वो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हटा के नए $200 वाला डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हम डाल देंगे, बराबर। लेकिन सभी जगह पे हम मैनेज नहीं करेंगे पूरे के पूरे एप्लीकेशन में। समझ गए? ये रियल लाइफ का सिनारियो है, और रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी आएंगे आपको कि जहां पे एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी है वो बेसिकली सब लोग यूज नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली इस कंसेप्ट यूज करते हैं, बराबर। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि कुछ स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसके बाद जब हमारी एप्लीकेशन टर्मिनेट होती है तो डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसा सब कुछ मतलब प्रोसेस होती है, वो अलग की बात है। लेकिन ये एक कंसेप्ट है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी स्प्रिंग देता है, बराबर। ये जावा के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग थोड़ा अच्छी तरह से वो देता है, मतलब अलग अलग फंक्शनैलिटी विथ हम कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ कस्टमाइज करना हो तो कस्टमाइज कर सकते हैं, बराबर। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है। Hello. हाँ। Yeah, I'm saying, sir, if you do all these codes on any IDE, so it's more understandable for us. हाँ, एक्चुअली अगर कोई कंट्रोल देना चाहता है तो मैं वहां पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हैंग हो रहा है अभी मेरा जो लैपटॉप है ना वो हैंग हो रहा है जब भी मैं इक्लिप्स या इंटेलिजेंस स्टार्ट करता हूँ ना। कोई कंट्रोल दे सकता है यहाँ वहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी ना, कौन सी? यस, उसको पता होगा कौन। आज एक मिनट। हाँ, रिमोट कंट्रोल किसी को चाहिए ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ सर, मैंने ये शेयर किया, आप ट्राई कर लो। नहीं, आपने मेरी स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए वो किया है। आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। ओके। हाँ, आप दीजिए। ओके, ओके, इंटेलिजेंट आइडिया का कम्युनिटी एडिशन यूज करो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इक्लिप्स अभी कोई यूज नहीं करता। एक्चुअली सर मेरे पास इक्लिप्स ही है अभी। नहीं, डाउनलोड कर सकते हैं ना आप इक्लिप्स। इंटेलिजेंट आइडिया का कम्युनिटी एडिशन यूज करना, अल्टीमेट मत करना। रैम कितनी है आपकी सिस्टम की? 8 GB।
ओके 8 GB है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके ग्रेट, जावा प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग बूट वाला है बराबर। जी ओके ये ड्रैग करोगे क्या, क्योंकि मेरे क्लिक से हो नहीं रहा है। ओके ओके so there is sir. ओके बराबर है, ठीक है। हाँ रिसोर्सेज में नहीं, ये तो स्प्रिंग बूट वाला है ना, वो देखना पड़ेगा। सर्वर डॉट पोर्ट, ओके। ये जो देखो टारगेट फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, वो टारगेट की बात कर रहे थे ना हम, वो टारगेट की हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। नहीं एम्प्टी है शायद। ये सर ये एमपी है ओके ठीक है। इधर से मतलब प्रोग्राम पे मेरे ये बराबर है। ये एडिट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाई है बराबर आपने, ग्रेट। अरे देखो ये आ गया, org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कंटेक्स्ट। I for is interface. There was a symbol I. तो उसका मतलब ये इंटरफेस से था में भी। हाँ इंटरफेस से था बराबर है, ये इंटरफेस है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। आई मतलब इंटरफेस, सी मतलब क्लास, और ब्राउन करके ई भी आएगा एक, वो इनम होगा, इनम बराबर। इनम क्या है वो आपको जावा कोर में आएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास XML फाइल नहीं होगी ना। डिपेंडेंसी ऐड नहीं की। नहीं एक काम करते हैं, आज के लिए ये तो रहने ही देते हैं। मतलब मैं आपको कोड बना के आपको कोड शेयर करूंगा ना, तो आप भी प्रैक्टिस कर पाओगे और मैं भी समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से मतलब टाइपिंग भी नहीं हो रहा है, और फाइल्स भी मतलब आपके पास नहीं होंगे लोकल पे, ठीक है। तो अभी कोई बात नहीं है, स्क्रीन शेयर करके ही रखिए, आप कंट्रोल करके रखिए। तो ये स्प्रिंग का एक बेसिक कंसेप्ट हो गया बराबर। तो स्प्रिंग के कंसेप्ट में हमने क्या क्या देखा आज, एनीवन नो, एनीवन कैन टेल मी, मतलब कौन कौन से कंसेप्ट आए, जो भी नाम आए आपको याद आए तो। स्प्रिंग आईओसी पहले बताया था, फिर लॉग इन्फो कैसे करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड on and bin factory also is for XML. lazy loading and early एक lazy loading logs. अर्ली लोडिंग। एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इसको मैं मतलब एक बार फिर से इसको मतलब एक्सप्लोर करना चाहूंगा। ये मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था। कोई एक्सप्लोर करना चाहेगा सिंपल एग्जांपल से,
उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। सर ये जितना मैंने इसको समझा, एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन स्प्रिंग, इसका मतलब ये था कि हम पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट पे जाके उस मतलब डिपेंडेंसी को ना लगाते हुए हम उसका एक ऑब्जेक्ट ही बना के रख देंगे और उसको मतलब कॉल करा लेंगे हमको, मतलब जहाँ जहाँ भी उसकी जरूरत पड़ती है। तो उससे हमारा मतलब प्रोग्राम भी अच्छा हो जाएगा और बार बार मतलब चीजों को रिपीट करने से भी हम मतलब अपनी मतलब एनर्जी सेव कर लेंगे। सही है, सही है, बराबर, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़े बराबर। जिस कोई किसी को अगर मेन नोट बनानी है तो वो मेन नोट बना लो, क्योंकि सब लोग आप एक साथ ही हो, बराबर। तो ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, फिर लेजी लोडिंग, फिर अर्ली लोडिंग, बराबर, इसका थोड़ा गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो, कोई और अच्छी तरह से वो समझाएगा। मतलब उसके पास वीडियो के पास, क्योंकि बहुत सारे वीडियो है, सिर्फ हमें देखना है कि कौन सा वीडियो हमारे लिए अच्छा है, बराबर। तो जिसके साथ नंबर ऑफ व्यूज अच्छे हैं तो वो वीडियो देख लो, तो उसमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी हम छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए भी बहुत ज्यादा थोड़ा डीप में जाएंगे तो 6 महीना साल भर लग जाएगा। उससे अच्छा है कि जो जो भी कंसेप्ट हमने थोड़ा थोड़ा देखा उसका वीडियो आप देख लोगे ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समझ में आ जाएगा, अगर वो कोडिंग करता है या कुछ कोडिंग की लिंक देता है तो वहां पे भी देख सकते हो आप, बराबर। क्योंकि मैं समझाता हूँ, मैंने तो अभी शुरुआत की है बराबर समझाने की, मैं ऐसा ट्यूटोरियल लेता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा भी थोड़ा आपको समझने को मिले तो आप भी बताओ कि क्या मतलब आपको समझ में आया, आईओसी का कुछ नया क्या कुछ आया, बराबर। ऐसा भी आप कर सकते हो, बराबर। और एक साथ अगर करोगे ना, जैसे मान लो कि आप 5-6 लोग हैं, बराबर, तो 5-6 लोग में से कि कोई एक बंदा डिपेंडेंसी इंजेक्शन ले लेता है, कोई एक लेजी लोडिंग ले लेता है, कोई एक अर्ली लोडिंग ले लेता है, कोई एक एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ले लेता है, उसका वीडियो एक एक आदमी देखो, उसकी नोट्स बनाओ और फिर सबको समझाओ ऐसे सिंपल इजी भाषा में। तो क्या होगा कि डबल टाइम उसको समझने का मौका मिलेगा, बराबर, और सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा, सभी कंसेप्ट की एक नोट्स भी बन जाएगी, बराबर। पता चल रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मतलब डिवाइड कर लीजिए आप अपने तरफ से कि भाई क्या कौन सा कंसेप्ट कौन लेगा, बराबर। और अगर इश्यू है तो हम नेक्स्ट सेशन में भी हम मतलब उसको समझाएंगे कि भाई हाँ ये क्यों ऐसा हुआ, बराबर। हम लोग करते हैं वैसे शाम को, मतलब एक मीटिंग होगी इवनिंग में, जिसमें हम लोग एक दूसरे को कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि हमने क्या पढ़ा उससे रिलेटेड। चलो सही है, बराबर, बहुत अच्छा है ये बात। तो जो भी हम ये सेशन ले रहे हैं उस सेशन में भी जो जो भी अलग अलग टॉपिक दिख रहे हैं, बराबर, तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो मेन कंसेप्ट है, बराबर, जिसके लिए आपको यूट्यूब करना है, बराबर, तो वो भी मैं पॉइंट देता रहूंगा आपको कि कौन कौन से के लिए उसको मतलब हमें देखना है, बराबर। ये बीन फैक्ट्री होगा, डिपेंडेंसी लॉग्ड और इन्फो के लिए जरूरत नहीं है, बराबर। आईओसी फिर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, बराबर। और इसकी नोट्स भी कहीं पे भी बना नहीं हो तो आप बनाओ, और फिर क्या बोलते हैं, गिटहब सबको आता होगा क्या? यस सर। अगर नहीं आता है तो भी सबकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक काम ये भी कर सकते हो कि जो ये भी अलग अलग कंसेप्ट है उन सब का मतलब अलग अलग पॉइंट्स के साथ अलग अलग फाइल बनाओ और उसको एक रिपोजिटरी में कमिट करना सीखो, बराबर। अलग अलग फाइल सब बनाए, सबका पूल करे, पुश करे, बराबर। वो आप साहिल सर से पूछ लेना, साहिल सर आपको थोड़ा ज्यादा बताएंगे, क्योंकि जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो एक रेपोजिटरी में बना लेना, जो जहाँ पे सब लोग शेयर कर सके और मैं भी देख सकूं, बराबर। तो मैं भी अपनी तरफ से वो कोड पुश कर लूंगा वहां पे कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। Dharmesh, we have like I'll create a repository. Okay. हाँ, और इन लोगों को मतलब समझा, मतलब वो अपनी तरफ से ही गिट पुश कर सके तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और ओके, तो थोड़ा हम ये थोड़ा स्प्रिंग का तो हम समझ चुके हैं।
लेकिन साथ साथ में हम अभी स्प्रिंग बूट के ऊपर भी आ ही जाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का जो बेसिक है वो तो समझने की जरूरत है, वो साथ साथ में हम समझेंगे। लेकिन ये जो स्प्रिंग बूट है वो स्प्रिंग के ऊपर आया क्यों, बराबर सबको ऐसे क्वेश्चन होते होंगे। तो स्प्रिंग के पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, और कोई क्या बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहता होगा, कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहता होगा, कोई एपीआई बनाना चाहता होगा, बराबर अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई रेस्ट एपीआई, कोई वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन के लिए उसको कहीं पे भी अपनी वेब एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या बोलते हैं कंटेनर की जरूरत होती है। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है कि आपके पास पहले इनपुट मांगेगा कि आपको एप्लीकेशन बनानी कौन सी है, स्प्रिंग रेस्ट बनानी है, या स्प्रिंग बैच बनानी है, या फिर स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन बनानी है। तो अगर वेब एप्लीकेशन बनानी होगी तो वेब के रिलेटेड जो जो भी जार फाइल्स है या डिपेंडेंसीज है, वो डिपेंडेंसी सारी की सारी वो डाउनलोड कर लेगा, और आपको एक ही फाइल दिखाई देगी यहाँ पे। एक मिनट, pom.xml ओपन कीजिए जिसके पर भी कंट्रोल हो। हाँ, तो ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, बराबर। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 21 पे डिपेंडेंसी ग्रुप आईडी org.spring-framework.boot, और आर्टिफैक्ट आईडी क्या है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, बराबर। ये एक ही डिपेंडेंसी आपने डाली, और क्या हुआ कि जो भी वेब एप्लीकेशन रिलेटेड जितनी भी जार जरूरत थी वो सारी की सारी ये स्प्रिंग ने डाउनलोड कर ली, ये मैवे ने डाउनलोड कर ली। अब यहाँ पे एक्सटर्नल क्या बोलते हैं उसको, ये मैवन डिपेंडेंसीज के अंदर जाइए। हाँ, देखो कितनी सारी मतलब छोटी छोटी मतलब जार फाइल्स है वगैरह, ये सारी एक ही जो डिपेंडेंसी है इसके अंदर से ही आ गई। नीचे लिखा है, मुझे पता है कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, वो टेस्टिंग के लिए डाली है। तो टेस्ट के रिलेटेड जितनी भी मतलब होगी जे यूनिट वाली, तो वो सारी की सारी आ गई। यहाँ पे देखो SLF4J का है, वो लॉगिंग के लिए है, बराबर। तो ऑल इन वन सब कुछ स्प्रिंग बूट एक साथ ही वो डाल देता है, और एप्लीकेशन को मतलब ऐसे फ्रेमवर्क बना देता है कि अगर आप एक कोड लिखो या ना लिखो, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो भी कस्टमाइज करना है, जो भी कुछ लिखना है, वो आप लिख सकते हो अपने तरफ से ऑटोमेटिकली, बराबर। तो ये स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग के बीच में यही डिफरेंस है। स्प्रिंग बूट कुछ भी नहीं है, स्प्रिंग का ही यूज करता है, बराबर। जैसे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट बीन फैक्ट्री के सारे मेथड्स और फीचर्स को यूज करता है, वैसे ही स्प्रिंग बूट स्प्रिंग के सारे फीचर्स और अलग अलग कंपोनेंट्स उसको यूज करता है, और अलग अलग मॉडल बनाता है, बराबर। जैसे अगर आप बाइक में देखोगे कि क्या बोलते हैं, हीरो होंडा या जो भी हीरो की बाइक है, बराबर, वो स्प्लेंडर होती है, फिर शाइन होती है, फिर अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, कंपोनेंट्स तो एक ही जैसे है, जैसे इंजन है, व्हील्स है, मतलब साइड लाइट्स है वगैरह जो भी है, लेकिन उसके डिजाइन्स वगैरह कुछ अलग अलग होती है। वो डिजाइन ही सिर्फ अलग अलग हमें यहाँ एप्लीकेशन में बनानी है, बाकी जो भी मेन कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जार में आ जाता है। तो स्प्रिंग बूट यही काम करता है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आप इतना थोड़ा देखिए और वो रिपोजिटरी में लगाइए। तब तक उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बराबर। तो नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा बहुत कोडिंग थोड़ा हैवीली देखेंगे, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो भी सब लोग हैं वो सब कुछ मतलब इक्लिप्स और वो सब कुछ इंस्टॉल करके लाइएगा, बराबर। जो भी इक्लिप्स चालू करके रखिए। तो सर अगले टॉपिक में क्या शुरू होगा, उसके लिए अगर थोड़ा सा मतलब आइडिया रहेगा तो मतलब आदमी वो रिवाइज करके आएगा ना। हाँ सर, एक बार एक शॉर्ट लुक ले लेंगे अगर। हाँ, मतलब अगले टॉपिक में कुछ नया मतलब नहीं, जो भी हम करेंगे आपको जो करना है वो जो भी टॉपिक है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बराबर। तो ये टॉपिक के ऊपर ही आपको चर्चा करनी है, चर्चा मतलब पढ़ना है और सबको एक दूसरे को समझाना है, बराबर। और जो भी फाइल बनती है वो वहाँ पे गिट रिपोजिटरी में बनाओ, छोटे छोटे कंसेप्ट भी, कि ये लेजी लोडिंग है या अर्ली लोडिंग है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और क्या क्या करता है, कोडिंग के पर्सपेक्टिव भी जो भी कुछ आप ढूंढ लो या जो भी समझ लो, मतलब जो भी मिले वो भी आप लिखो। तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे, और वो भी एक जगह पे ये सब कुछ स्टोर होता जाएगा। तो हमें पढ़ने में और जब इंटरव्यू देंगे तब भी हमें वो
करने में वो अच्छी आसानी रहेगी, तब हमें गूगल पे सर्च करना नहीं पड़ेगा। बराबर। तो अभी के लिए आपको नेक्स्ट टाइम जो भी नया मैं समझाऊंगा, वो मेरे पास भी टाइम टेबल है, वो तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन इसका जो भी कंसेप्ट है वो भी हम कोडिंग के थ्रू हम देखेंगे। बराबर, पूरा का पूरा। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी और कुछ आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। हेलो, बोलिए, कोई भी नहीं, कुछ शर्माइए मत। कानपुर में क्या बारिश गिर रही है नहीं गिर रही, वो भी बोल सकते हो। बारिश हो रही है। अच्छी खासी हो रही है या फिर कैसा है हाल? ये ऐसा ही है, थोड़ा बहुत है। बराबर। बारिश अच्छी हो रही है और भूख भी लगी है, तो सेशन कल कंटिन्यू करते हैं बाकी। भूख बहुत ज्यादा लग गई है। अरे तो अभी तो 3:30 बजे, 2 बजे तक तो खाना खा लेना चाहिए। हाँ, सेशन में यही सोचा था, अगर 4 बजे रहे, 2 बजे ऐसा टाइम है कि नहीं, 2 बजे तो मतलब आज सैटरडे है इसीलिए, वरना हम शाम को ही करेंगे प्रोबेबली। ओके। ठीक है यार, अभी के लिए बहुत है यार, है ना, थक गए बच्चे। नहीं, मुझे पक्का पता है कि 75% थोड़ा ऊपर से गया होगा, लेकिन हाँ, अभी नेक्स्ट लेकिन टाइम अभी वीडियो जानते में हो क्या, देखेंगे। अभी जानते हो क्या धर्मेश, तुम प्रैक्टिकल समझाओगे ना, जब कहोगे लिखोगे, जैसे स्प्रेड देखो, कंट्रोलर हम लिख रहे हैं, अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे जब डेटा जा रहा है देखो जा रहा है, डीबग करके दिखाओगे, तो इनको थोड़ा सा विजुलाइज ज्यादा होगा। यस यस, नहीं वो कोडिंग तो पक्का करेंगे, क्योंकि लेकिन पंडित जी आपको भी पता है, थोड़ा मुझे भी टाइम निकाल के वो कोड बनाना पड़ेगा। राइट 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 राइट। लेकिन चलेगा, थोड़ा थियरी के साथ साथ हम कोडिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। करेक्ट करेक्ट बराबर। करेक्ट। ओके ठीक है। ठीक है, चलो चलो तो फिर मिलते हैं एवरीवन। ओके, बाय बाय बाय। जी सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय।